Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 19th of October 2021, Tuesday. Inspiration of the day is being happy never goes out of style. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 1. Longest winning streak for indices in 10 months. So India's benchmark indices gained for a seventh straight session on Monday. Even the global stocks were mostly weak. As we have discussed about the record hits by Sensex as well as the Nifty. And this news basically covers the gain that contained or attained by the India's benchmark indices for last 7 straight sessions. तो बेसिकली इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उन्होंने 7 कंटिन्यूअस सेशन में अपना रिकॉर्ड हाई रजिस्टर किया है, जबकि जो बहुत सारे ग्लोबल स्टॉक्स हैं वो वीक रहे हैं इस सेशंस में, इन सारे सेशंस में, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल एज वेल एज द अदर कमोडिटी प्राइसेस. सो इन्फ्लेशन कंसर्न की वजह से जहाँ पर ग्लोबल स्टॉक जो हैं उन्होंने वीक परफॉर्मेंस रजिस्टर करी है, इंडिया के जो स्टॉक मार्केट इंडाइसेस हैं दे आर गेमिंग कंटिन्यूसली फॉर 7th स्ट्रेट सेशन. एंड as per the data, this is the longest winning streak for the domestic market in nearly 10 months. पिछले लास्ट 10 महीनों में यह सबसे ज़्यादा और सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक रही है इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस के केस में. So between December 22 and January 5, the Sensex has gained for approximately 10 straight trading sessions and added 5.3% into its achievement. Apart from it, on Monday, if we talk about the yesterday, so on Monday, 30 shares index closed at a fresh all-time high, that is up to 61,766 points. 460 पॉइंट ज़्यादा था, या फिर उसको परसेंटेज में बोलें तो 0.75% की ग्रोथ रजिस्टर करी है सेंसेक्स ने केवल मंडे के परफॉर्मेंस में. And since October 8, the index has gained on all the occasions and added approximately 4.4% into its point. And if we talk about the Nifty index, Nifty 50 index, so Nifty 50 index on Monday closed at approximately 18,477. And this is a broad-based index that has shown the surge of approximately 800 points, 831 points or 4.7% in the past 7 sessions and finishing at a new high on 6 occasions. और सेंसेक्स के केस में इन्फोसिस और आईसीआईसीआई ने जो कंट्रीब्यूशन अचीव किया उसकी वजह से ज़्यादा सर्ज देखने को मिला. सो ओवरऑल वीक ग्लोबल सेंटीमेंट्स के बाद, वीक ग्लोबल स्टॉक परफॉर्मेंस के बाद भी इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है दैट इज़ कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग वेल. एंड इफ वी टॉक अबाउट द गेनर्स, सो टाटा मोटर्स, टाइटन, एम ONGC, Wipro was the top gainers. And if we talk about the losers, Cipla, HCL, TCS, Britannia and HDFC Life were the top loser in this particular streak. Although apart from this huge performance by stock exchange, if you see the bond yield rates and oil price surge rate, that is continuously high. So all these factors are still cause of concern for the stock market, because bond yield again reached the 3.939 level and oil prices are or have increased or continuously increasing or have increased up to $84.50 per barrel. So amid the increased performance or record performance by India's stock market, bond yield and oil price surge, all these factors are still very cautious or very concerning for Indian economy. And apart from it, there is a one short news that is given here. Government pushing to get LIC IPO done on time. So LIC का IPO आने के जब बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही है, डिले चल रहा है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीज़न. कई क्योंकि LIC इज़ अ कॉर्पोरेशन तो उसको कई सारे उसमें लीगल हर्डल्स भी आ रहे हैं.
LIC के केस में गवर्नमेंट चाहती है कि जो इन्वेस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करें, रिटेल इन्वेस्टर्स, पॉलिसी होल्डर्स, इन सब के लिए फ्रेमवर्क बनाना, एंड दैट इज़ वाई द IPO ऑफ LIC इज गेटिंग डिलेड. बट गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट इज पुशिंग all the measures to get the initial public offer of Life Insurance Corporation of India across the line, that is by the next March, and any delay won't be due to the lack of political will as per the government of India. और ऐसा कहा जा रहा है कि LIC का जो IPO आएगा वो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा IPO होगा, LIC का IPO. सो लेट अस सी हाउ गवर्नमेंट विल एक्चुअली एग्जीक्यूट एंड ओवरकम ऑल दीज हर्डल्स, लीगल हर्डल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स एंड पब्लिक sentiments for bringing LIC IPO on time. Now let us look into the article number 2 that is given on page number 4. BPCL privatization may face a bump on rising fuel prices. अभी हम LIC के IPO की बात कर रहे थे. Now this news talk about the disinvestment of Bharat Petroleum Corporation. In short we call it BPCL. तो जो ऑफिशियल इन्वॉल्व हैं BPCL के प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस में, दे आर सेइंग दैट बिकॉज ऑफ द हिट ऑन फ्यूल प्राइसेस, बिकॉज ऑफ द high fuel prices, the disinvestment of Bharat Petroleum Corporation may get delayed. They pointed out that this high price of crude oil or fuel prices regime could hamper the prospect of potential buyers of BPCL. क्योंकि जो ऑयल के प्राइसेस है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में और इवन इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो, जिसकी वजह से जो बायर्स हैं BPCL के वो अभी के लिए जो वैल्यूएशन स्ट्राइक करेंगे या जो BPCL का वैल्यूएशन करेंगे, दैट मे नॉट बी अप टू द मार्क, और it may happen that we will not get the potential buyer for BPCL because of the high crude oil prices. So high crude oil prices is actually working as a hurdle for disinvestment of BPCL. A senior oil ministry official said a public sector oil marketing company take a hit when they sell the petrol, diesel and liquefied petroleum gas, three of most popular petroleum product of the country. तो कहीं ना कहीं कंपनी की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज क्रूड ऑयल प्राइजेस, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज फ्यूल प्राइजेस, जिसकी वजह से अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही, तो डेफिनेटली उसके लिए अच्छे बायर्स भी नहीं मिलेंगे. इसलिए क्वाइट ऑब्वियस एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी को खरीदने के लिए बहुत अच्छे बायर्स, बहुत अच्छे बिडर्स सामने आ सकते हैं, बट एक लॉस मेकिंग या लेस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को खरीदने के लिए उतने पोटेंशियल बायर्स बिड नहीं कर सकते. एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑफिशियल्स आर सेइंग दैट द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ BPCL मे गेट डिलेड. और कब इसको आप बेसिकली हम बोले डिसइन्वेस्टमेंट इनिशिएट किया जाएगा, मोस्ट लाइकली जब जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं, फ्यूल के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से मेलो डाउन होंगे. इन दैट केस ऑयल फर्म्स कैन रिकवर दिस पर्टिकुलर हिट. सो at that time company or the officials may go for privatization of this particular PSU. और अगर लॉस की बात करें तो द ऑयल कंपनीज आर बेरिंग अ लॉस विद देयर एग्जिस्टिंग मार्केट मार्जिन, दैट इज 3 to 4 rupees a liter being trimmed because of this increased fuel prices at 884.50 a piece for a domestic cylinder, and OMCs are taking a hit of approximately 100 rupees a cylinder. सो अभी थोड़ा सा मॉडरेशन देखने को मिला है फ्यूल प्राइसेस में, बट इन स्पाइट ऑफ दैट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैव बीन सोल्ड इन द कंट्री एट अ हायर प्राइसेस. सो दिस इज द प्रॉफिट फ्रॉम डाउन स्ट्रीम पेट्रोलियम, एंड वी कैन सी द प्रॉफिट ऑफ financial year 19 in terms of crore, financial year 20 in terms of crore, and financial year 21 in terms of crore. And definitely this period was the pandemic hit period. So profit from downstream petroleum by the oil marketing companies, or in short we call them OMCs. And apart from it, India is also pushing for lower oil price at Saudi OPEC meeting. और ऐसा नहीं कि इंडिया पहली बार ऐसा करने वाले, जिस तरह से डोमेस्टिक क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट बेसिकली इंडिया मतलब गवर्नमेंट को भी इस बात का ख्याल है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है, इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी के टाइम पर एनर्जी की, फ्यूल की जो डिमांड होती है, एनर्जी का जो कंजप्शन होता है वो बढ़ता है.
तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो ओपेक की मीटिंग में लोअर ऑयल प्राइसेस के लिए अपना स्टैंड लेगी. सो इंडिया विल पिच फॉर अ लोअर प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल एट द अपकमिंग एडिशन ऑफ CERAWeek. What is CERAWeek? A premium energy conference. CERAWeek is a premium energy conference that is to be held in Delhi this week. And CERAWeek is taking place at a time when the global oil prices are hitting the historic high. And definitely, India will be anchoring this international meeting, and that will be attended by the different representatives from the world's largest oil producer countries like Saudi Arabia and other countries or other petroleum exporting countries. And that is why India will use this forum to push फॉर द लोअर ऑयल प्राइसेस एट सऊदी. हालांकि इंडिया ने पहले भी सऊदी अरेबिया से कई बार इस चीज़ के लिए पुश किया है, बट सऊदी अरेबिया का डिफरेंट टेक रहा है, और दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो. तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा सा मॉडरेट करने के लिए इंडिया में कॉल दिस forum. Now let us see how Saudi Arabia or other OPEC nations mean oil producing or organization for petroleum exporting country or oil producing countries. In short we call it oil producing and exporting countries, otherwise it's a organization for petroleum exporting countries, OPEC. Okay, so in OPEC definitely government will raise their concern. Let us see how these countries will actually operate. Now let us look into the article number 3 that is given on page number 8. Need of the hour is to focus on supply side reforms, RBI. So RBI or Reserve Bank of India said in its State of Economic Report in October bulletin that there is a time that India need to focus on supply side reforms and easing various bottleneck and disruption that is causing the economic doldrums. So RBI ने clearly इस बात को बोला है कि डिमांड साइड जो फैक्टर्स हैं उनको तो कंट्रोल किया ही जा रहा है, बट गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द सप्लाई साइड रिफॉर्म सो दैट द वेरियस बॉटलनेक एंड द डिसरप्शन दैट इज arising for fulfilling the demand or increasing demand of the economy can be normalized. तो आरबीआई का ये कहना है कि सिंगल माइंडेडली नॉर्मलाइजेशन पर फोकस करने, डिमांड पर फोकस करने से ही काम नहीं चलेगा. गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फोकस ऑन द सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट के सप्लाई साइड जो कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल सप्लाई को लेकर के हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड के सप्लाई को लेकर के हो, अगर डिमांड जनरेट हो रही है एंड बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट organization, companies, producers are not able to fulfill that demand, that may leads to further inflationary pressure as per the RBI. The central bank also said the policy support from sustained and inclusive recovery. This is the time for government of India, or this is time for Indian economy to move towards the sustained and inclusive recovery in order to support the growth going forward. और इसके लिए आरबीआई ने जो फूड जो इन्फ्लेशन है जो अभी रिसेंटली मॉडरेट हुई है उसको एग्जांपल देते हुए कहा है कि जिस तरह से फूड इन्फ्लेशन, फूड प्राइसेस जो अभी ईज आउट हुए हैं, एंड दैट डेफिनेटली दैट फूड प्राइसेस हैज़ ऑल्सो मॉडरेटेड द WPI एज वेल एज द CPI. इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड इन वन न्यूज़ एनालिसिस. सो एज पर द RBI, food prices have eased the headline inflation into a closer alignment with the टारगेट. सो इन्फ्लेशन पर फोकस करने के लिए आरबीआई का कहना है कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. वाई? बिकॉज इकोनॉमिक रिकवरी के टाइम पर डिमांड तो इंक्रीज होगी, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस. डिमांड बढ़ेगी तभी इकोनॉमिक रिकवरी होगी, बट अगर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट दूर नहीं किए गए तो वो डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी. दैट मे फर्दर लीड्स टू इन्फ्लेशनरी pressure on the Indian economy. On inflation, the MPC call has turned out to be करेक्ट. एनपीसी ने थोड़ा सा ये, या हम कह सकते हैं आरबीआई ने एंटिसिपेट किया था कि आगे आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन मॉडरेट होगी, और उसी एंटिसिपेशन या फोरकास्टिंग के बेसिस पे आरबीआई ने अकोमोडेटिव इंस्टांस अडॉप्ट किया था. आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था कि आरबीआई ने डिसाइड किया था कि दे विल नॉट गो फॉर पॉलिसी रेट कट और पॉलिसी रेट इंक्रीज. स्टेबल पॉलिसी रेट रखेंगे. जो अकोमोडेटिव इंस्टांस आरबीआई ने अडॉप्ट किया था पिछले कुछ मंथ्स में, पिछले कुछ मीटिंग्स में, वही इंस्टांस आरबीआई विल कंटिन्यू सो दैट द लिक्विडिटी इन द मार्केट कैन बी इंश्योर
और जो हाई इन्फ्लेशन को लेकर जो खतरा था उसको वो रिसेंट जो CPI WPI डाउन हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा रिड्यूस हो गया और RBI को हम कह सकते हैं ज़्यादा मार्जिन मिल गया है फॉर अडॉप्टिंग एकोमोडेटिव पॉलिसी, फॉर इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द मार्केट एंड फॉर सपोर्टिंग द इकोनॉमिक रिकवरी. And because of that, RBI in its bulletin is saying that it is not a time to focus on single-mindedly on normalization. It is not for normalization, but country should also focus, or government should also focus on supply side reforms to ease out the bottleneck and disruption, labor shortage, high commodity prices that all country is फेसिंग. अगर आप ध्यान दें तो इकोनॉमिक रिकवरी तो स्टार्ट हो चुकी है और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. चिप की शॉर्टेज, कोल की शॉर्टेज, लेबर की शॉर्टेज एंड इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंक्रीजिंग LPG prices, all these are hampering the growth prospect और recovery prospect of economy और जो definitely इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी पर इम्पैक्ट डालेंगे. इसी को लेकर के RBI ने अपने इस बुलेटिन में बोला है कि डिमांड पर तो फोकस करना ठीक है, पर अगर डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, इन दैट केस द ग्लोबल रिकवरी इज एट रिस्क. सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट इज़ फॉर द कंट्रीज ऑल्सो दैट दे शुड फोकस ऑन द सप्लाई चेन दैट हैज़ डिस्टर्प्टेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक and try to smoothen or try to improve the supply chain so that the demand, increasing demand can be satisfied and economic recovery can also be supported. Apart from this demand and supply constraint, RBI has also focused on decarbonization drive and trade war between the countries into their bulletin. And if you want to go in detail, you can see the RBI bulletin that is published monthly. Now let us look into some other news clips. DOT tells telcos to decide on AGR moratorium in 10 days. So DOT stands for Department of Telecommunication. So Department of Telecommunication asked the Bharti Airtel, Vodafone, Idea and Reliance Jio for what? To inform the government by 29th of October. किस लिए? What is their plan? For what? For दिस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज, जो उनके AGR ड्यूज पेंडिंग हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सारी कंपनीज को AGR ड्यूज पे करने हैं, उनको उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग 10 साल तक का टाइम दिया जा सकता है. इनिशियली बैंक गारंटी सबमिट करने को, BG सबमिट करने को कहा गया था और कुछ अमाउंट को 10 साल के फॉर्म में या इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो जितनी टेलकॉस कंपनीज हैं ये सबमिट करें. तो फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने तीनों ही कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज जिन पर सबसे ज़्यादा AGR ड्यू है, दैट इज़ भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो पे हालांकि सबसे कम AGR ड्यू पेंडिंग है. अगर सबसे ज़्यादा AGR ड्यू की बात करें तो भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया पर पेंडिंग. तो उनको 29 अक्टूबर तक का टाइम दिया है डॉट ने और ये बोला है कि आप पूरा प्लान अपना सबमिट करें, बताएं कि हाउ यू आर going to pay this particular AGR due, whether they would go to opt for 4-year moratorium on AGR due, which is the part of relief package approved last month, or they have any other plan for submitting this AGR dues. And further 3 months have been given to service provider to respond on whether they would choose the option of converting accrued interest due to the deferred payment into the equity, or companies opting for moratorium proposal will have to furnish their audit financial statement. तो 2-3 ऑप्शंस दिए गए. इक्विटी में कन्वर्ट कर दीजिए जो इंटरेस्ट है जो ड्यू है AGR, या फिर आप 4 साल का या जितने भी साल का आप मोराटोरियम जो एज पर द स्कीम अलाउ है उतना लेकर के आप पूरा का पूरा AGR ड्यू पूरा करेंगे, पूरा सबमिट करेंगे. एंड इफ़ यू रिमेंबर सितंबर 15 को हमने डिस्कस भी किया था, यूनियन कैबिनेट ने एक रिलीफ पैकेज अप्रूव किया था टेलीकॉम सेक्टर के लिए, एंड विच इंक्लूडेड द 4-year मोराटोरियम ऑन AGR एंड स्पेक्ट्रम पेमेंट, रिड्यूस बैंक गारंटी एंड द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग operators principal statutory dues owing to the deferred payment into the equity at the end of moratorium period, that is or after 4 years. ये जितना भी रिलीफ पैकेज आया था अगर हम देखें इसको ध्यान से, दैट इज ऑन द रिकमेंडेशन और वी कैन से आफ्टर द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन AGR dues.
और इसके अलावा बहुत और सारे भी अनाउंसमेंट किए थे रिलीफ पैकेज के तहत। क्या क्या अनाउंसमेंट थे? अगर मेजर अनाउंसमेंट की हम बात करें तो 100% FDI अलाउ कर दिया था थ्रू ऑटोमेटिक रूट इनटू दिस टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकॉम सेक्टर। 80% रिडक्शन इन बैंक गारंटी प्रोवाइड किया था, जिससे कि जो कंपनीज हैं वो जो अपना पैसा बैंक गारंटी में लगा रही हैं FD के फॉर्म में। बैंक गारंटी बेसिकली कि बैंक गारंटी देता है कि कंपनी आपको आगे आने वाले समय में इतना पैसा पे करेगी और इसका इतना पैसा हमारे पास सबमिट होता है, एक बैंक गारंटी एक सर्टिफिकेट होता है। तो कंपनीज ने कहा था कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट बैंक गारंटी के फॉर्म में देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा वर्किंग कैपिटल है वो अफेक्ट हो रहा है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट हो रहा है, जिससे कि हमारी इनकम और प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है। तो हम AGR ड्यू कैसे पे करेंगे अगर हमारी इनकम और प्रॉफिट दोनों रिड्यूस होंगे? तो इसी को लेकर के 80% रिडक्शन दिया था बैंक गारंटी में गवर्नमेंट ने कि ठीक है, अगर आप 100 रुपये जमा कर रहे थे बैंक गारंटी के लिए, तब आप केवल 20 रुपये ही जमा करिए। 80 रुपीज़ आप अपने काम के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करिए, जिससे कि आपकी इनकम जनरेट होगी, प्रॉफिट होगा, और विद दिस इनकम एंड प्रॉफिट यू विल बी एबल टू पे द ड्यू AGR। तो 80% बैंक गारंटी में रिडक्शन किया था। इंटरेस्ट रेट का भी रैशनलाइजेशन किया था। पेनल्टीज जो थी अक्टूबर 2021 के बाद से उनको रिमूव कर दिया था। फॉर फ्रेश ऑक्शन नो बैंक गारंटी विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर द इंस्टॉल पेमेंट। इसके अलावा टेन्योर ऑफ स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस को लेकर के, एडिशनल SUC को लेकर के बहुत सारे चार्जेस में इस रिलीफ पैकेज के तहत रिडक्शन किया गया था इन ऑर्डर टू सपोर्ट द टेलीकॉम। बट नाउ गवर्नमेंट इज आस्किंग ओके, ये सारा तो रिलीफ पैकेज है, अब आप अपना बताइए कि व्हाट इज योर प्लान फॉर पेइंग द AGR, व्हाट इज योर विश, वेदर यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी और यू वांट टू अवेल मोरेटोरियम। आपका पूरा प्लान क्या है? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सहित डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को बताइए, सो दैट वी कैन टेक डिसीजन ऑन इट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। NCLT अलाउज RRVL टू होल्ड EGMs ऑन फ्यूचर ग्रुप डील। EGM को लेकर के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट अराइज हो रहा है इस समय। बहुत सारी कंपनीज अगर जो ज्वाइंट वेंचर के लिए जा रही हैं या मर्जर के लिए जा रही हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स हैं, सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स हैं, दे आर फाइलिंग द कंप्लेन इनटू NCLT कि उनको AGM होल्ड नहीं किया गया, उनसे पूछा नहीं गया, उनसे मीटिंग नहीं, उनसे वोटिंग नहीं कराई गई। बहुत सारे कंपनीज के हम अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, सो यू मस्ट बी नोइंग सो देयर आर लॉट ऑफ डीज दैट आर अंडर स्कैनिंग बाय NCLT फॉर दिस AGM इशू ओनली। चाहे वो डिश TV का केस हो, चाहे वो फ्यूचर ग्रुप का केस हो, चाहे वो ZEAL का केस हो। अब इस केस में इस पर्टिकुलर न्यूज़ में किस केस की बात करी गई है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑन मंडे अलाउड द रिलायंस रिटेल वेंचर and Reliance Retail Fashion Lifestyle Limited, that is RRFLL, क्या अलाउ किया है? टू होल्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ देयर शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स टू एक्वायर द फ्यूचर ग्रुप्स बिजनेस। तो आप फिलहाल NCLT ने कहा है रिलायंस को कि आप EGM होल्ड करिए, उस EGM में आप शेयर होल्डर्स से वोटिंग कराइए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका सेंटिमेंट पूछिए किस बात के लिए? फ्यूचर ग्रुप के बिजनेस को एक्वायर करने के लिए। सो NCLT सेड द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय अमेरिकन रिटेल जियांट Amazon वर प्री मैच्योर एंड कुड बी डेल्ट विद लेटर। तो Amazon ने जो केस फाइल किया था फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट, उसको लेकर के फिलहाल ये बोला गया है कि अभी इसको होल्ड पर लगाया जा सकता है, क्योंकि इट्स नॉट वेरी prudent to discuss it earlier, but now for Reliance it is said that you should hold AGM और उस AGM में आप शेयर होल्डर से परमिशन लेंगे whether to acquire this future group business or not. On September 28, the NCLT had allowed 6 future group companies to hold meeting of their respective shareholders and creditors. So cloud of uncertainty is still there. Let us see how this particular deal between Reliance and Future will take place. अब देख लेते हैं next clip. Fed tapers may see some capital outflow from India, warns IMF. So International Monetary Fund has cautioned that any tapering by Federal Reserve and similar action by any other central bank from any other country would lead to or may lead to some capital outflow from India. और जबकि इस समय इंडिया के पास अगर हम देखें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, तो इंडिया हैज़ अ सफिशेंट और एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट द मोमेंट amid the high foreign direct investment and portfolio investment. IMF has also cut the India's potential growth rate in the medium term.
to 6% from early 6 point to the medium term जो growth rate है उसको 6 से 6.25 से 6% पर reduce किया था recently IMF ने अपनी रिपोर्ट में due to the second wave of the COVID-19 and disruption in the labor market. बट इसके लिए भी IMF ने कॉशन किया कि किसी भी तरह की टेपरिंग चाहे वो RBI करे या वर्ल्ड के अदर बैंक फेडरल रिजर्व US का बैंक करे that may leads to some sort of capital outflow from India and may hamper the India's foreign exchange position. And as per the few official or mission chief for India, Asia, Pacific, IMF, he said that funds downside risk is that tightening of condition globally could leads to some capital outflow from India. Some capital outflow from India means कुछ foreign investors जो हैं वो इंडिया से अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं अगर किसी भी तरह का चेंज या किसी भी तरह का टेपरिंग करी गई बाई फेडरल रिजर्व और एनी अदर सेंट्रल बैंक. And as per him, he think we have seen that FDI continue to be strong in case of India. We have seen that after some volatility earlier in the year, portfolio flows have also resumed in case of India. But of course, that part of flow can go out again, as he was speaking to reporters virtually in the IMF report on India's under Article 5. He said India has a high level of foreign exchange reserve, and based on our metrics, we think it is appropriate in the current context. And if any change, India if do any change, that may lead to the capital outflow from India. And this is the, if you want to see the data, and this is a macroeconomic projection for India by IMF. GDP growth, CPI inflation, gross saving, gross investment, and fiscal deficit for continuously 3 years. So this is the projection by IMF. Definitely you can have a glimpse of it. Do not need to mug this data. It is just for understanding the prospects of Indian economy for upcoming 3 years. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.